بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی: اے اللہ، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا مطلب شمائل ہے۔ شمع کے معنی ہے سن اور عل اللہ کے مترادف ہے۔ کیونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ جب آپ علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کی طرف سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے اس جگہ پہنچے تو دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی اپنی اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب، ہمیں عطا قائم رکھ۔ رب، اے رب، بعض لوگوں کے دل جھک دے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ دیتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئے تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش کرنا شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اسے لازم قرار دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بچے کے پاس واپس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معجزہ دیکھ کر
बे हद खुश हुई और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। उसके बाद आप राजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी इससे मुस्तफीद हुई। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उनकी तरफ से वईद सुनाई, ऐ हाजरा आप खौफज़दा ना हो और ना ही गमगीन हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चे को ज़ाय नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर यानी बैतुल्ला और उसे उस बच्चे और उसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे बाद बनु जरा एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हजरत हाजरा राजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से आकर यहाँ आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन उसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब हकीकतन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे मैं तुम्हें अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बेटा तेरी क्या राय है? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल से फरमाया, बाबा जान आप अल्लाह ताला के नबी और उनके बरगुज़ीदा बंदू में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए घर से निकल खड़े हुए। रिवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और उन्हें बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। इस पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस्माइल हमारी अकलौती औलाद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रज़ा है तो इस पर मैं राज़ी हूँ। जब इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को उकसाया, उसके बाप की शफ़क़त को उभारा और कहा, ऐ इब्राहीम इस्माइल आपकी अकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल आगे बढ़नी है, ये आप क्या करने जा रहे हैं? इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ताला ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह ताला की अमानत है, मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर राज़ी हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फर्मा बरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आपको बहकाने की अपनी नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि उसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में डटे रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ, मेरे बाबा जान को मेरे रब ने बराह रास्त मेरी कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया है और अंबिया कराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने उन्हें कुर्बान गाह में जाने से 3 बार रोकने की कोशिश की और तीनों मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस पर कंकर बरसाए और उसे नाकाम बना दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुजाजे कराम दोहराते हैं और ये रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादिये मना में पहुँचे जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा और ना शायद क़यामत तक देख पाएगा। ज़मीन व आसमान साकित हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते
आसमान से ज़मीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। तभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाबा जान आप मेरे दोनों हाथ और पाँव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको दिक्कत ना हो, और बाबा जान मुझे ज़मीन पर मुंह के बल लिटाइएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़िबा ना कर पाएं। बाबा जान अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पाँव बांधे और बेटे को ज़मीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काट सकी क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप बहुत जोर लगाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत ही नाजुक है मगर तू क्यों नहीं चलती? आसमान पर फरिश्ते खामोश, ज़मीन पर एक इंसान के अल्लाह ताला से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्रील जाओ और जन्नत से दुम्बा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और उसकी कुर्बानी करो। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेकर जाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और दुम्बा रख दिया और छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल गई। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर खून लगा और बेसाख्ता आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आँखों से पट्टी उतारी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुताल्लिक रिवायत में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक दुम्बा था। यही वो कुर्बानी है जिसे ता क़यामत उम्मत मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ फरमाया है, और हमने उसे पुकारा यूँ, ऐ इब्राहीम तूने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूँ देते बदला नेकी करने वालों को। ये था वो अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसे मुसलमान हर साल मनाते हैं।